Can you see the can you see the screen, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anyone gone through the PDF that I've already posted in the Google Classroom? Yes, ma'am. Did you go through it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So any idea what we learned today? What we gonna learn today? Elements of geometric design. Yes, element, but which element? Here we are discussing, we are dealing with cross-sectional element, okay? See See, here. ma'am, cross-sectional. Yes. Suppose this is your roadway, okay? You have cut suppose your roadway was like this from the top view, okay? And your vehicle was moving in this direction. Now you cut one section, okay? You cut your roadway, and now you will see from this side. That view is known as the cross-sectional view, okay? So whatever elements or whatever features that we can see from this cross-section, we have to design, okay? And that topic is known as the cross-sectional element of geometric design, okay? So let us see what are the different cross-sectional features that we have to design, okay? So today it's about this only. Now the topic that we will cover today is your first we will discuss what are the different elements, okay? We will get to know the names of the different elements of the cross section, okay? Under the cross section, these are the highlighted, we can say these are the important cross sectional element that we must. मैम Yes, मैम 2 स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, ग्रुप में बोल रहे हैं. what is his name? Sobik Mandal. सौविक मंडल है और सूरजीत पोड़ल. Okay. हो गया? आकाश, सनशाइन, सोबी, कौन कौन है? आ गए हो? Sunshine is present. Who is Sunshine? रूपम सनशाइन. Rupam. Shubhajyoti Podal. Who is Shubhajyoti Podal? Okay, Rupam is present. Now who is Shubhajyoti Podal? Present. Okay, done. Okay, let us start then. 23 students. It's already 7 minutes. Okay. See here, these are the different topics, okay? First element we have already discussed in our previous lecture, okay? In our lecture 5, pavement surface characteristic. There we learn about friction, okay? And we learned about the pavement surface condition, pavement roughness. All these are the those things comes under this pavement surface characteristic. That means pavement friction, roughness, undulations, and light reflecting characteristics, okay? Now the second topic that we started yesterday was camber, okay? And these are the following topics that we will learn today, okay? So these are the different elements. I have named it, okay? These are the different elements. Carriageway. What are the carriageway? I will show you in the picture. What do you mean by shoulder? Okay, road width, right of way, building line, control line. You can go through it. All these we will discuss one by one, okay? So let us discuss. We have discussed this one yesterday, okay? Done. This is also done. This is also done. Okay. Camber, we started camber, okay? Camber means what? It is actually the cross slope. See here, suppose this is the cross sectional view, okay? The the transverse slope which is provided in the pavement is known as the cross slope or camber. That slope is known as the camber, okay? See, it is slightly tilted,
You can see, I think. And there are three types of camber, how we can provide. First is that straight line camber. These two are straight line, okay, straight line in nature. Whereas we can provide parabolic also, or we can provide straight plus camber, that is combined composite camber. Okay, so here we are having some portion straight, then parabolic, then straight. Okay, why we are providing, why we are providing this composite type of camber, we will discuss now. Why we are providing this camber? Okay, any kind of camber, what is its main function? See, main function is to provide minimum drainage. Suppose, मैम yes, मैम फिर से दो स्टूडेंट नहीं हो रहा है, ग्रुप में बोल रहे हैं ज्वाइन। संगीता एंड श्रीमय काजी। ओके, या और कोई है बाकी? बोलो जल्दी से उन लोग को। नहीं और नहीं है, देखो सी, अगर यहाँ पे तुम्हारा बारिश होगा, ठीक है, तो अगर ये वाला कैम्बर नहीं देंगे हम लोग, क्रॉस स्लोप नहीं देंगे, स्ट्रेट अगर रहेगा, ये वाला पूरा स्ट्रेट रहेगा, तो क्या होगा? पानी इट विल स्टार्ट टू, मतलब यहाँ पे जमना, राइट, स्टैंडिंग होना स्टार्ट करेगा, पानी जमना स्टार्ट करेगा। तो आवर पेवमेंट शुड बी फ्री ऑफ वाटर, गुड पेवमेंट शुड बी फ्री ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि पेवमेंट के नीचे जितना भी लेयर्स है, ऑल दोज आर नेचुरल सॉइल्स, राइट। नीचे जो भी सपोर्टिव लेयर्स है, सपोर्टिंग लेयर्स है, लास्ट में जाके सबग्रेड है जो, दैट इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टेड नेचुरल सॉइल। अगर बाई चांस पानी नीचे गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? वो सपोर्ट ढीला पड़ जाएगा। तो अगर गाड़ी लोड अगर यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा? पेवमेंट पूरा फेलियर होना स्टार्ट करेगा। ओके, वी हैव टू प्रिवेंट दैट वन ओनली। सो द फर्स्ट पर्पज इज द ड्रेनेज पर्पज, ठीक है। अगर एमसीक्यूज में भी आएगा तो मिनिमम ड्रेनेज प्रोवाइड करने के लिए है, ठीक है, कैम्बर का काम। दूसरा है कि अगर ये वहां पर पानी जमा रहा तो क्या हो जाएगा? द रोड सरफेस विल बी वेट कंडीशन, ऑल्सो इट विल बी स्लिपरी। तो एक्सीडेंट होना, ब्रेक अप्लाई करोगे तो नहीं होगा, स्लिप कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। सो इसको भी प्रिवेंट करना है। तो मेन क्या है कि मिनिमम ड्रेनेज फ्लो हो जाए, प्लस जो पानी नीचे पेनिट्रेट होके अगर जाएगा तो वो सबग्रेड को इफेक्ट करेगा। सो देयर शुड बी नो सीपेज, आइदर लेस सीपेज और नो सीपेज। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्रॉस स्लोप दे रहे हैं। देखो, अगर पानी ऐसा आएगा तो क्या यहाँ पे ऐसा स्लोप है तो वो फ्लो होके अपने आप जाएगा और इस तरफ में तुम्हारा ड्रेन रहेगा, ठीक है, दोनों तरफ ड्रेन रहता है, तो जाके ड्रेन में वो चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द कैम्बर। ओके, नाउ लेट अस गो टू द टाइप्स। एज आई सेड, स्ट्रेट क्यों देते हैं, पैराबोलिक क्यों देते हैं? अगर हम स्ट्रेट देते, ठीक है, तो एक प्रॉब्लम होता है जो हम कल पूछे थे कि तुम अगर स्पीड में जा रहे हो, ठीक है, अपना एक स्पीड उसमें व्हीकल मतलब गाड़ी चला के जा रहे हो, एंड तुम्हारे सामने एक स्लो मूविंग व्हीकल है, तो क्या करोगे? यू हैव द टेंडेंसी टू ओवरटेक दैट स्लो मूविंग व्हीकल्स, राइट। तुम तो उसके पीछे पीछे नहीं जा सकते, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। नाउ व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू ओवरटेक इट। तो बोलो, ये पैराबोलिक में तुमको सुविधा होगा ओवरटेक करना, ना कि ऐसा स्ट्रेट वाला कैम्बर में सुविधा होगा? विच विल बी मोर इजियर फॉर यू, पैराबोलिक और स्ट्रेट? स्ट्रेट। स्ट्रेट, स्ट्रेट स्ट्रेट। मतलब ऐसा कैम्बर अगर देंगे तो तुमको सुविधा होगा। देखो देखो डायग्राम देखो। पैराबोलिक क्यों, व्हाई? ठीक बोला, पैराबोलिक में सुविधा होगा, लेकिन व्हाई? देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे तुम्हारा पॉइंटेड हो जा रहा है, ठीक है, शार्प एज हो जा रहा है। Whereas parabolic में देखो, here it is working like a smooth surface। दो तरफ क्या ढाल बोलते है हैं? ना इसमें। हाँ, ढाल है, एग्जैक्टली ढाल है। Whereas यहाँ पे एक स्ट्रेट हमको मिल रहा है, राइट, स्मूथ मिल रहा है, जिससे तुमको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस पैराबोलिक इज फॉर योर हाई स्पीड व्हीकल्स, मतलब तुम्हारा स्पीड हाई होने से भी तुम उस स्पीड में भी ओवरटेक करके जा सकते हैं। लेकिन इस वाले में क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा खुद को कॉशियस होकर अपना स्पीड को कमा के ओवरटेक करके फिर तुम अपना दूसरा लेन चेंज करोगे, तब जाके अपना जो पहले का स्पीड था उसमें जा पाओगे। लेकिन तुम हाई स्पीड में अगर आ रहे हो तो इस ऐसा वाला कैम्बर अगर रहेगा तो तुम उसी स्पीड में ओवरटेक करके जा सकते हो, ठीक है। सो
दिस टाइप ऑफ पैराबोलिक कैम्बर्स आर प्रोवाइडेड जनरली किस टाइप के रोड में, जहां पे हाई स्पीड मूविंग व्हीकल्स होता है, ठीक है। तो फिर ये दोनों कंबाइन करके ये देने का जरूरत क्यों है? हम लोग आइदर स्ट्रेट देंगे या मतलब पूरा ही पैराबोलिक ही देंगे। मतलब स्ट्रेट भी ठीक है, हम लोग ओवरटेक करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको हटा दिया, पैराबोलिक रख दिया, लेकिन फिर भी दोनों को कंबाइन करके एक स्ट्रेट और एक पैराबोलिक दे रहा है, क्यों? अब देखो इस वाले स्लोप में देखो, यू कैन सी आई थिंक हियर, ठीक है, इस वाले स्लोप में अगर तुम खड़ा रहोगे और इस वाले यहाँ पे सेम डिस्टेंस में अगर यहाँ पे खड़ा रहोगे, तो किस में ज्यादा मतलब ढिलाई लग रहा है तुमको, किस में ज्यादा टिल्टेड लग रहा है, पैराबोलिक में ना कि स्ट्रेट में? मतलब तुम्हारा गाड़ी किस में ज्यादा टिल्ट हो जाएगा अगर एज में खड़ा रहोगे, तो दोनों का ही, स्ट्रेट में या पैराबोलिक में? पैराबोलिक में। पैराबोलिक में, राइट, पैराबोलिक में, हाँ। एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एज यू विल फील लिटिल बिट टिल्टेड इन पैराबोलिक कैम्बर, ठीक है। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तुमको मतलब क्या होता है, हम लोग का गाड़ी अगर ज्यादा टिल्ट हो जाएगा तो हम लोग को डर लग जाएगा ना कि गाड़ी उलट ना जाए बोल के। तो इसीलिए इस कंडीशन पैराबोलिक का ये वाला कंडीशन ओके, वेरी गुड, कि हम लोग ओवरटेक करके जा सकते हैं स्मूथली, लेकिन ये वाला कंडीशन नॉट ओके, ठीक है। वेरएज इसका ये नॉट ओके, इसका ये ओके, ठीक है। अब दोनों को जो जो ओके ओके है उसको मिला दो। तो देखो इसका मिडल वाला पोर्शन पैराबोलिक रहेगा तो ओके है, तो ठीक है, मिडल में हम पैराबोलिक लगा दिए। इसका अगर साइड में एज में अगर स्ट्रेट रहेगा तो ओके था, तो इसलिए हम लोग साइड में एज लगा दिए, जहां जहां पे ओके है ये भी ओके, ये भी ओके, ठीक है। अब इसमें तुम मतलब ये वाला परफेक्ट हो गया, यहाँ पे हाई स्पीड भी जा सकते हो, ठीक है, हाई स्पीड में ओवरटेक भी कर सकते हो, और तुम्हारा एज में अगर खराब भी हो गया गाड़ी तो तुम एज में जाके चला भी सकते हो, राइट। इसीलिए कंपोजिट टाइप का निकला हुआ है। अब आता है कि कैम्बर किसको बोलते हैं, ठीक है। ये वाला डायग्राम में देखो, ये जो टॉप पोर्शन है एकदम ऊपर हाईएस्ट पोजीशन जो है, ठीक है, उसको बोलते हैं कैम्बर, क्राउन, क्राउन, ठीक है, इसको बोलते हैं क्राउन। whereas this distance is known as camber, ओके, या इस डिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं राइज, RISE, कितना ऊंचा है कंपेयर टू द एज, राइट। एज में क्या होता है, एज में जीरो है, कोई हाइट नहीं है, लेकिन जैसा जैसा जा रहा है ये हाइट बढ़ता बढ़ता जा रहा है, राइट, और यहाँ पे जाके मैक्सिमम हो रहा है। सो दिस इज द राइज एंड दिस इज नोन एज द कैम्बर और द डिफरेंस बिटवीन द टॉप मोस्ट क्राउन एंड द लेवल रोड, ओके। तो इसको ही बोलते हैं राइज। तो प्रॉब्लम तुम लोग का MCQ बोलो, तुम लोग का कोई न्यूमेरिकल्स अगर इससे आएगा तो पूछेगा कि फाइंड आउट द राइज, ओके, ऑफ द कैम्बर। अब वो स्ट्रेट कैम्बर भी हो सकता है, पैराबोलिक कैम्बर भी हो सकता है। तब कैसे निकालेंगे हम, ये राइज का फॉर्मूला डिराइव किया गया है, ठीक है। लेट अस सी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, राइट। अब पैराबोला का फॉर्मूला वही था तुम लोग का AX², राइट। तुम्हारा उससे डिराइवेशन करके ये वाला जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं राइज, इसको अगर हम R से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इस वाले से हम कोई एक छोटा ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। तो बोला है अगर x डिस्टेंस इस तरफ तुम जाओगे, ठीक है, तो y डिस्टेंस इस तरफ तुम ऊपर उठोगे, राइट। इसका मतलब यही है, ये कोऑर्डिनेट का मतलब है कि x डिस्टेंस जाने पर कितना ऊपर उठा, y डिस्टेंस। तो x और y के बीच में रिलेशन क्या है, दिस वन, दैट इज y इज इक्वल्स टू 2x² बाय nw, ओके। whereas w क्या है, w is the total width of the pavement, मतलब टोटल कितना चौड़ा है, कैरेज वे का width कितना है, that is denoted by capital W, ठीक है। x is the horizontal जो भी जा रहा है मूवमेंट, y is the vertical movement, ठीक है। देखो x डिस्टेंस जाएंगे तो कितना ऊपर उठेंगे, वही हमको दिखाया जा रहा है, तो दोनों का रिलेशन इससे आएगा, क्लियर। नाउ व्हाट इज n, n हम ऑलरेडी बोल दिए, अगर ये स्लोप है इसको बोलते हैं 1:n या 1/n, ऐसे भी बोला जा सकता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। 1:n का मतलब क्या है कि अगर 1 है तुम्हारा वर्टिकल, 1 इज वर्टिकल, n इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। मतलब n डिस्टेंस जाएगा तो 1 डिस्टेंस ऊपर उठेगा, सो 1 इज योर वर्टिकल and n is your horizontal, okay, clear। तो यही है तुम्हारा स्लोप। तो ये वाला स्लोप जो है इसको बोलते हैं 1:n, क्लियर। तो ये n is this one only,
ओके, दिस इज फॉर योर, ये वाला है तुम्हारा फर्स्ट पैराबोलिक के लिए, ये वाला इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। तो फिर y इक्वल्स टू 2x² बाई NW, तो फिर r का वैल्यू कितना होगा, इस वाले इक्वेशन से r का वैल्यू कितना आना चाहिए बोलो तो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r, पहले बोलो। r मीटर ऊपर उठने के लिए उसको कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करना पड़ेगा, r मीटर वर्टिकली उठने के लिए, ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टली W/2, ठीक है। तो यहाँ पे तुम y के जगह पर लिखोगे क्या, r, ठीक है, और x के जगह पर क्या लिखोगे, W/2, ठीक है, का होल स्क्वायर बाई n का जो भी वैल्यू होगा दिया जाएगा, w का भी वैल्यू दिया जाएगा। तो ऐसे तुम r का वैल्यू निकाल सकते हो फॉर पैराबोलिक, क्लियर। अब वैसे ही अगर हम लोग को बोला गया कि इसका निकालो स्ट्रेट का, अभी हम प्रॉब्लम जो देंगे वो स्ट्रेट का होगा, ठीक है। देखिए ये वाला है सपोज स्ट्रेट, ठीक है, इसका स्लोप देखो क्या बोले थे हम बोले थे कि ये है 1/n, मतलब ये है 1:n, राइट, मतलब ये 1 मीटर n मीटर का जिस तरफ जाएगा तो 1 मीटर ऊपर उठेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ का क्या होगा, दिस इज योर r का वैल्यू है, राइट। r मीटर ऊपर उठने के लिए इसको कितना मीटर इस तरफ से जाना पड़ रहा है, यहाँ तक जाना पड़ रहा है, विच इज W/2, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल और एक छोटा वाला ट्राइंगल हम अगर लेंगे विच इज n, दिस इज 1, अब दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें ये वाला ट्राइंगल है तुम्हारा r, ये वाला है W, ओके, इसमें है 1, ये है n, तो हम लोग ये लिख सकते हैं 1/n, ये वाला अगर हम बड़ा करके ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। ये है तुम्हारा W/2 और ये है तुम्हारा r, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/n इक्वल्स टू r/W/2, राइट। इसको इक्वेट करके देखो, लास्ट में ये फाइनल एक इक्वेशन आएगा जो कि स्ट्रेट लाइन कैम्बर का फॉर्मूला है, r का फॉर्मूला। अगर बोलेगा r का वैल्यू निकालो, राइज का वैल्यू निकालो, तो w दिया रहेगा, n दिया रहेगा, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट यूजिंग दिस इक्वेशन। ये याद रखना है, तुम लोग नोट डाउन करके भी रख सकते हो, अभी प्लीज राइट डाउन, अभी कहीं पर खाता वाता है तो लिख के रखो, r इक्वल्स टू है W/2n, ठीक है। ओके देन नाउ अब देखो ये कैम्बर का वैल्यू, हम मेनली क्या हम लोग चाहते थे, कैम्बर क्यों देते थे कि ड्रेनेज के लिए, राइट। अगर रेनफॉल हुआ, बारिश हुआ तो वो मतलब इजीली फ्लो हो जाए, राइट, वहां पे स्टे ना करे, मतलब क्या बोलते हैं, पेवमेंट के ऊपर रह ना जाए, ठीक है। इसीलिए हम उसको बह जाने के लिए एक छोटा सा मतलब हल्का सा स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेन फंडा है। तो कैम्बर अब किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, कैम्बर इट डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल, ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन का रेनफॉल कैसा है, हैवी रेनफॉल है तो कैसा होगा और लो रेनफॉल है तो कैसा होगा। नाउ आई वांट टू आस्क यू, अगर जिस एरिया में सपोज अंकुश पाल का रीजन बहुत हैवी रेनफॉल वाला इलाका है, ठीक है, और तुम्हारा अनिमेष का बहुत लो रेनफॉल, मतलब ज्यादातर रेनफॉल कम ही रहता है, तो दोनों में से कौन से वाले जगह पर हमारा कैम्बर का स्लोप ज्यादा देना चाहिए, जो हैवी रेनफॉल है वहां पे, अंकुश के उस पे, या तुम्हारा अनिमेष के रीजन में। अंकुश अंकुश, क्योंकि वहां पे हेवी रेनफॉल है, राइट, बारिश हो रहा है, तो चांसेस हो सकता है, हाँ चांसेस ज्यादा हो सकता है कि वहां पे पानी जमना स्टार्ट हो जाए, राइट। तो हम लोग का क्या करेंगे, हम उस वाले इलाके में राइस को बढ़ा देंगे, कैम्बर बढ़ा देंगे, मतलब है कि राइस को बढ़ा देंगे, मतलब ये वाला लेंथ हम बढ़ा देंगे, ठीक है। वेरएज अनिमेष का ज्यादातर तो पानी नहीं रहता है, वहां पे ज्यादातर बारिश नहीं होता है, लेकिन फिर भी मिनिमम एक स्लोप देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग राइस को छोटा सा रख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह मतलब इसी वजह से ये वाला चार्ट डेवलप हुआ है। देखो डिपेंडेंसी क्या है, एक है अमाउंट ऑफ रेनफॉल के ऊपर, यहाँ पे जो भी चार्ट मिलेगा तुमको, देखो रेनफॉल का वैल्यूज बोल दिया रहेगा, हैवी रेनफॉल है या लो रेनफॉल है, ठीक है। और एक क्राइटेरिया है कि टाइप्स ऑफ पेवमेंट के ऊपर भी, ठीक है, मतलब जिसका हाई क्वालिटी पेवमेंट हम यूज करेंगे उसका कैम्बर कम देने का जरूरत है, जिसका वीक क्वालिटी पेवमेंट हम लोग बनाएंगे उन लोग का क्या होगा, ज्यादा कैम्बर देना है, राइट, क्योंकि उन लोग का जो भी है वाटर क्या बोलते हैं, वाटर को
रिपेल करने का कैपेसिटी जो है, रिपेल करने का कैपेसिटी घटता जाएगा। देखो जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसका क्वालिटी क्या हो रहा है, पेवमेंट का क्वालिटी घट रहा है ना बढ़ रहा है? देखो पेवमेंट का क्वालिटी घट रहा है ना बढ़ रहा है? पहले सीमेंट कंक्रीट या थिक बिटुमिनस कंक्रीट, ठीक है, फिर थिन बिटुमिनस, फिर वाटर बाउंड मैकाडम मतलब ग्रेवल रोड जो पत्थर वत्थर से होता है, दूसरा है अर्दन रोड मतलब माटी मरम से जो बनता है, ठीक है, लेटरल सॉइल से जो बनता है। तो क्वालिटी क्या हो जा रहा है इन लोग का, घट रहा है, कमे जाच्छे, घट रहा है, ठीक है। जैसे जैसे घटेगा देखो तुम्हारा ये जो एन का वैल्यूज देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, राइट। 2% था, 2% मतलब 2 in 100, ठीक है। ये वाला था 2.5%, 3%, 4%। तो जैसे जैसे क्वालिटी घटेगा हमको कैम्बर का हाइट बढ़ाते बढ़ाते जाना है, जिससे कि पानी जितना हो सके फ्लो आउट हो जाए, मतलब जितना हो सके इजीली फ्लो आउट हो जाए, ठीक है। इसीलिए ये वाला वैल्यू देखो बढ़ता जा रहा है। अब देखो हेवी रेनफॉल में हम बोले थे ज्यादा देंगे और लो रेनफॉल में हम कम देंगे, इसलिए देखो पहले 2 था, अभी 1.7 मतलब सेम सेम टाइप का पेवमेंट के लिए हेवी रेनफॉल में ज्यादा कैम्बर है और इसमें कम कैम्बर है, ओके। अब देखो ये वाला 2% है, इसको अगर हम 2% को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2/100 भी बोल सकते हैं, राइट। 2/100 को हम क्या बोल सकते हैं, 1/50 भी बोल सकते हैं, इसीलिए 1/50 भी बोल सकते हैं, राइट। तो 1/50 को ही हम लोग लिखे हैं यहाँ पे 1:50 या 1 in 50 करके, ऐसे ये 1 in 50 निकला है, ठीक है, 2 से ऐसे निकला है। वैसे 2.5 से 1 in 40 निकलेगा। क्लियर, ये वाला चार्ट क्लियर। सो कैम्बर वैल्यू, ম্যাম 50 হরাইজন্টাল গেলে তাহলে 1 ভার্টিক্যাল যাবে। यस 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 यस। ম্যাম এখানে হেভিতে ম্যাম তাহলে তো ম্যাম কম হচ্ছে কেন ম্যাম, লোতে বেশি হচ্ছে কেন, মানে হাইটটা? দেখো দেখো বলছি কি হচ্ছে, দেখো इसका देखो 2/100 है ना, मतलब क्या है कि अगर 100 मीटर ये जाएगा, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना जाएगा 2 मीटर, ओके। अब देखो सेम 1.7 है, राइट, मतलब सेम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली जा रहा है, लेकिन इसका हाइट थोड़ा कम हो गया है कंपेयर टू द प्रीवियस। अब देखो कौन सा ज्यादा स्टीपर लग रहा है तुमको, ये 1.7 है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल सेम है। अब कौन सा ज्यादा स्टीप लग रहा है, ये वाला 2, इसीलिए ये वाला हेवी रेनफॉल में हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर, मतलब जिससे इजीली और इजीली जल्दी जल्दी फ्लो हो जाए, पानी टिके ही नहीं वहां पे, ओके। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। लेट अस गो टू द अनदर टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिराइवेशन किए थे, यहाँ पे चार्ट दिया है, ये दोनों यूज करके ये वाला फॉर्मूला और ये वाला चार्ट यूज करके हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो कि ये वाला है। सी क्या क्या दिया है, इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर द रेनफॉल इज हैवी, ठीक है, मतलब हम लोग को कौन सा यूज करना पड़ेगा टेबल, ये वाला, ठीक है, ये वाला कॉलम यूज करेंगे। कोई भी अगर वैल्यू देगा तो ये वाला कॉलम से लेंगे, ये वाला नहीं आएगा फिलहाल इस प्रॉब्लम में, ठीक है। तो बोल दिया है रेनफॉल इज हैवी, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड ऑफ WBM पेवमेंट, ठीक है, जिसका विड्थ है कितना 3.8 मीटर, ओके, एंड अ स्टेट हाईवे ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट जिसका विड्थ कितना है 7 मीटर। तो दो टाइप का पेवमेंट बोला है, एक डिस्ट्रिक्ट में दो टाइप का पेवमेंट है, एक है WBM, एक है बिटुमिनस कंक्रीट, क्लियर, जिसका विड्थ अलग अलग दे दिया है, आर टू बी कंस्ट्रक्टेड, ओके। नाउ व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द क्राउन, इसका ये क्या है, दिस इज योर आर, राइस निकालो बोल रहा है, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द क्राउन विथ रेस्पेक्ट टू द एज, ओके। इन दिस टू केसेस क्यों है, क्योंकि एक WBM कंस्ट्रक्ट किया है उसमें कैसा राइज होना चाहिए, ठीक है, और एक बिटुमिनस कंक्रीट दिया उसमें कैसा राइज होना चाहिए, और वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, हेवी रेनफॉल एरिया में है, ठीक है। तो WBM के लिए हमको क्या चाहिए, WBM क्यों दिया, बिटुमिनस क्यों दिया है, ये वाला चार्ट देखो, इस वाले चार्ट में देखो, एक तो हमको ये वाला कॉलम यूज करना है, और एक बोला है कि देखो थिक बिटुमिनस सरफेस, मतलब यही है सरफेस बिटुमिनस कंक्रीट, फर्स्ट ये वाला है, और एक बोला है वाटर बाउंड वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमको स्लोप का वैल्यू निकलेगा, मतलब ये वाला कि कितना हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 in n कितना है 50 है, और यहाँ पे 1 in n कितना है 1 in
33 है, ठीक है, क्लियर। इसका 1 in n है फॉर दिस केस, फॉर फर्स्ट केस, ठीक है, सॉरी फॉर फर्स्ट केस WBM बोला था जिसका 1 in n है 1 in 33, ठीक है, और सेकेंड केस जो था बिटुमिनस कॉन्क्रीट जिसका 1 in n कितना है 1 in 50 है। क्लियर क्वेश्चन, तुमको दो वैल्यू दिया गया है, ओके। अब बोला गया है कि तुम निकालो, क्या निकालो, r का वैल्यू निकालो, ओके। तो उसके लिए क्या चाहिए, r का वैल्यू के लिए हमको स्ट्रेट, अभी फिलहाल स्ट्रेट वाला ही निकालो, कुछ बोला नहीं है तो स्ट्रेट वाला यूज करो, ठीक है। सो वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन नाउ। W/2n। n हमको वो चार्ट से मिल जाएगा और w इट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, ओके। सो प्रॉब्लम सॉल्व अगर करेंगे तो तुम लोग कर सकते हो अभी प्रॉब्लम, ना कि सोल्यूशन दिखाना पड़ेगा। यस मैम हो गया। हो गया, कितना है? फर्स्ट वाला 0.0575 आ रहा है और सेकंड वाला 0.07 आ रहा है। वेरी गुड, हाँ वही है, गुड गुड। देखो ये वाला, ठीक है। देखो WBM का बोला है विथ कितना दिया है 3.8 मीटर, मतलब ये W है। कैम्बर फॉर हैवी रेनफॉल 1 in n कितना है 1 in 33, ये वहां यहाँ से मिल जाएगा, देखो 1 in 30 हैवी रेनफॉल के लिए 1 in 33, ठीक है। और फॉर्मूला में यूज कर दो तो आ जाएगा। सिमिलरली बिटुमिनस का भी वही है, विथ दिया है 1 in n हमको यहाँ से मिल जाएगा विच इज 1 in 50 फॉर हैवी रेनफॉल, तो वो यूज करेंगे तो आ रहा है। क्लियर, ये वाला प्रॉब्लम टफ नहीं है, इजी है, ठीक है। हाँ मैम। ओके, नाउ अब बाकी सब थ्योरी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड एलिमेंट हो गया। फर्स्ट एलिमेंट क्या था, पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड एलिमेंट कैम्बर, थर्ड एलिमेंट कैरेजवे। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है दिस इज अगेन द क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है, मतलब ये पूरा 3D व्यू हो रहा है, क्रॉस सेक्शन प्लस 3D प्लान, ठीक है। तो ये जो भी रास्ता ब्लैक दिख रहा है तुमको विच इज सोलली यूज्ड फॉर व्हीकल्स ओनली, ओके, उस पोर्शन को बोलते हैं कैरेज वे, ठीक है, मतलब कैरी करेगा जिसमें, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा थ्योरी है, पढ़ लेना है, ठीक है। अब वो कैरेज वे डिजाइन कैसे किया है, ये जो कैरेज वे है का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोडवे है, उसका अलग अलग वैल्यूज हम लोग को IRC में डिजाइन किया गया है। तो कैसे किया गया है, तो एक एग्जांपल ये वाला लेंगे। कोई भी व्हीकल हम लोग ऐसे ही नहीं पकड़ेंगे, देखो दुनिया हम लोग का तो कितना है, देयर आर हेटेरोजेनस ट्रैफिक, राइट, मतलब कि एक ही टाइप का व्हीकल्स नहीं है, बहुत सारा टाइप का व्हीकल्स है, राइट। तो हम लोग जो डिजाइन करेंगे वी हैव टू सिलेक्ट वन कार which is a car or vehicle which is called design vehicle। तो IRC ने एक डिजाइन व्हीकल का विथ बोल रखा है कि कितना होगा 2.5 और 2.44 मीटर होना चाहिए इसका चौड़ाई, ठीक है। ये गाड़ी परपेंडिकुलर जा रहा है, हम लोग क्रॉस सेक्शन से देख ले, ये वाला पेवमेंट परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। तो गाड़ी का चौड़ाई हम लोग बोल रहे हैं कि कितना होगा एक डिजाइन व्हीकल का 2.5 मीटर या 2.44 मीटर, ठीक है। उतना स्पेस तो देना ही है हमको एक लेन में, ठीक है। उतना स्पेस देकर भी साइड साइड में कुछ क्लियरेंस रखना है, कितना क्लियरेंस 0.65 यहाँ पे 0.68 दिया है, ठीक है। अगर सबको ऐड करोगे तो देखा जाएगा इट कम्स अप्रॉक्स टू 3.75 और 3.8 मीटर, जनरली 3.75 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल विथ कितना आ रहा है कैरेजवे का, हम लोग डिजाइन कर रहे कैसे, अगर ये सिंगल कैरेजवे है, ठीक है, मतलब सिंगल लेन, लेन वर्ड याद रखना है, लेन, ये बहुत सुनाई देगा बाद में, ओ लेन, ठीक है। तो अगर ये सिंगल लेन रोडवे है तो उसका आइदर ये वाला रहेगा या 3.75 मीटर। अगर बहुत सारे प्रॉब्लम में तुमको बोलेगा नहीं, सिर्फ बोलेगा डुअल लेन, 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन, मल्टी लेन, सिंगल लेन सिर्फ बोल देगा, ठीक है। तो विथ दिया नहीं रहेगा तो हमको एज्यूम कर देना है कि हाँ इतना विथ हम लोग IRC ने डिफाइन किया है, ठीक है, विच इज 3.75 फॉर सिंगल लेन। और डुअल लेन का बोला है कि कितना होगा, ठीक है। डुअल लेन का देखो दो गाड़ी है 2.5 2.5, इन दोनों के बीच में 1 होगा, यहाँ पे 0.5 0.5, तो कितना हो रहा है बोलो, ये अगर 2.5 है, ठीक है, इन दोनों के बीच में 1 मीटर का गैप रहेगा, ये मीटर है, ठीक है, और तरीके 2.5 है, 1 मीटर है, फिर 2.5 है, और साइड में एज के साथ क्लियरेंस है तुम्हारा 0.5 0.5, ऐड करो कितना आएगा, कितना आएगा 7 मीटर, ठीक है, वही ये ना, ना 7 मीटर। 7 मीटर आ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से डुअल लेन का
7 मीटर किया है। अब ये वाला 7 मीटर है विदाउट कर्व। कर्व एक होता है, एक जीनिस होता है, देखना एज में ऐसा उठा हुआ रहता है, राइट, साइड साइड में, ठीक है। तो अगर ये विथ कर्व होता तो और थोड़ा 5 मीटर मतलब 0.5 और ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये विदाउट कर्व है तो 7 मीटर है, ठीक है। तो ऐसे डिजाइन किया गया है, कैरेज वे भी अपने आप ही ऐसे नहीं हिसाब में आया है, इन लोग को एज पर द डिजाइन व्हीकल ये सब दिया है। देखो सिंगल लेन रोड का कितना बोले थे हम, ये जो बोले थे 3.75। 2 लेन विदाउट कर्व, विदाउट कर्व्स स्पेलिंग देखो KERV दिखाई देगा, अभी बाद में दिखेंगे हम क्या है, 7 मीटर। अगर कर्व रहेगा तो 7.5 मीटर होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट कैरेज वे मतलब कि वो सिंगल लेन भी नहीं दे सकते, 2 लेन भी हम लोग कुछ कुछ जगह पर ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ एरिया और लैंड हम लोग डबल लेन भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे एक मतलब 1 लेन से काम नहीं चलेगा, उतना ट्रैफिक नहीं जाएगा, राइट। तो हमको थोड़ा चौड़ा कर देना है, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कैरेज वे, जहाँ पे ओवर कर पाए। सिंगल लेन में ओवर करना, डुअल लेन में हम इजीली ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट ऐसे जगह पे देते हैं जहाँ पे डुअल लेन लेकर उतना नहीं है, लेकिन वहाँ पे ओवरटेक करना ही ओवरटेक करके अलाउ करेगा, ठीक है। ओवरटेक भी कर सकते हैं वहाँ पे उस जगह पर मीटर का मैम दे दिया है, ठीक है। आवाज हाँ? सुनाई नहीं दे रहा है, कट रहा है आवाज। अभी भी हेलो सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके ओके। मैम किसी तो बारे बोले में थे कि सिंगल लेन का 3.75, 2 लेन का 7, विदाउट कर्व का 7, विथ कर्व का 7.5 मीटर, ठीक है। और जहां जहाँ पे हम लोग डबल लेन प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे ओवरटेकिंग जोन देना जरूरी है, तो थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, राइट, रास्ते को। सिंगल लेन में ओवरटेक नहीं पॉसिबल है, तो 5.5 मीटर कर दिया, मतलब इन दोनों के बीच में, 2 लेन और सिंगल लेन के बीच में हम रख दिए। और दूसरा है कि जैसे तुम लोग हाईवेज जाते हो, वहां पे कितना सारा लेन देखे हो तुम लोग, मल्टी लेन, राइट, मोर देन 3 लेन्स आर देयर। उन सबको बोलते हैं मल्टी लेन पेवमेंट, ठीक है। जनरली हाईवे, एक्सप्रेसवे सब कुछ क्या होता है, ऑल दीज आर मल्टी लेन्स। तो वहां पे पर लेन जो होता है, पर लेन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कितना है, 3.5 मीटर पर लेन, ठीक है। अभी ये वाला फिलहाल हमको याद रखना है कि 3.5 मीटर पर लेन है। अगर सिंगल लेन सिर्फ बोलेगा तो इतना होगा, ठीक है। अगर मल्टीपल लेन्स होगा तो क्या हो जाएगा, पर लेन का होगा 3.5 मीटर। तो फिर 4 लेन का कितना होगा, अगर बोलेगा 4 लेन हाईवे है, ठीक है, तो उसका विथ कितना होगा, व्हाट विल बी द W, 4 इंटू 3.5 विच इज कितना, 14 मीटर, 14 मीटर, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करना है हम लोग को, ओके। अब ये वाला है तुम्हारा डिफरेंट नेशनल हाईवेज का एक IRC कोड ने दिया है, ये जस्ट रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुमको रिमेम्बर जो करने के लिए बोले यही बस है, ठीक है। अब आते हैं, ये इसको बोलते हैं कैरेज वे। देखो तो ये क्या है, दिस इज योर 2 लेन, ठीक है, इसको बोलते हैं 2 लेन। तो एक एक लेन का डिस्टेंस कितना है, देखो ये कर्व नहीं है, यहाँ पे कुछ उठा हुआ है साइड पे नहीं, सो दिस इज 2 लेन विदाउट कर्व। तो इसका लेंथ, इसका विथ कितना होना चाहिए, व्हाट इज द टोटल विथ, 7, 3.5, 3.5, ठीक है, 7, वेरी गुड। तो अब आता है दूसरा एलिमेंट के ऊपर, मीडियन, जिसको ट्रैफिक सेपरेटर भी बोलते हैं, जो बीच में दिया रहता है, जो हम लोग नेशनल हाईवेज कोलकाता में भी देख सकते हो, बहुत सारा है, ठीक है, मीडियंस। ये जनरली व्हाई वी प्रोवाइड दिस मीडियंस, कोई आइडिया है क्यों प्रोवाइड करते हैं मीडियन? देखो इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो दोनों के बीच में चैनलाइजेशन बना रहे, ठीक है, ये इस तरफ ना आ जाए, ये इस तरफ ना आ जाए, इसके लिए इसको सेपरेट, ट्रैफिक सेपरेटर इसीलिए बोलते हैं, ट्रैफिक को सेपरेट कर दिया है, मतलब ये इस तरफ का ट्रैफिक इस तरफ ही रहेगा, इस तरफ ट्रैफिक इस तरफ ही रहेगा, राइट। एक वो है मेन है वो कि इट डिवाइड्स द ट्रैफिक, ओके। दूसरा है कि क्या, इट मतलब हाँ टू प्रिवेंट कॉन्जेशन। कॉन्जेशन, यस मैम, टू प्रिवेंट कॉन्जेशन, इसके लिए मतलब मीडियन दिया होता है। हाँ वो भी है, ठीक है, ठीक है। और एक चीज देखो, ऐसा अगर हाईवे रहा, ठीक है, तुम्हारा मीडियन नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, बस मीडियम, बीच में एक सेंट्रल लाइन हम लोग कुछ डाल दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रात के टाइम में तुम इस तरफ से आ रहे हो, कोई एक व्हीकल उस तरफ से आ रहा है, तो हेडलाइट का तो आएगा, राइट। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम लोग के
मतलब आई में वो डायरेक्ट हेडलाइट का लाइट आके क्या करेगा, थोड़ा हम लोग को मतलब अच्छा फील नहीं होगा, राइट। हम लोग को क्लियरली फिर दिखाई नहीं देगा, हम लोग के सामने कुछ भी रास्ता हम लोग क्लियरली देख नहीं पाएंगे, तब क्या हो जाता है, तब एक्सीडेंट होने का चांसेस भी हम लोग का रह जाता है। तो इसीलिए ये वाला सेपरेटर भी दिया रहता है मेनली, कि वही अगर रात के टाइम में इस वाले का ट्रैफिक और इस वाले का ट्रैफिक का हेडलाइट दोनों एक साथ मर्ज ना हो जाए और इससे दोनों को तकलीफ ना हो, राइट, ट्रैवलिंग करने में, तो जिससे एक्सीडेंट होने का चांसेस रिड्यूस हो जाता है। तो वो है एक मेन रीजन, ठीक है। और दूसरा रीजन एक है कि सपोज तुम यहाँ से आ रहे थे, यू आर कमिंग फ्रॉम दिस, यू वांट टू क्रॉस, यहाँ पे कुछ फुटपाथ है, ठीक है। तुम तो इस तरफ से जो व्हीकल आ रहे हो देख रहे हो, अच्छा इस तरफ से कोई नहीं आ रहा, उस हिसाब से तुम आ गए, यहाँ पे क्रॉस कर लिया, ठीक है। अगर ये वाला नहीं रहता, मीडियन नहीं रहता, मतलब ये दोनों अटैच होता, तो क्या हो जाता, इतना से यहाँ से जो आ रहा है तुम देख रहे थे नहीं आ रहा है, उस हिसाब से क्रॉस कर ले, लेकिन तुम इस तरफ का भी तुमको देखना था, राइट, इस तरफ से भी जो व्हीकल्स आ रहा है उसको भी नजर देना था। अगर बाई चांस वो मिस हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे तो हाई स्पीड व्हीकल्स मूव करते हैं, तो आके ये वाला धक्का दे सकता है, राइट, तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, राइट। तो इसीलिए तो क्या करेगा कि अगर ये बीच में एक स्पेस रहेगा तो वो आके रुक सकेगा यहाँ पे, राइट, क्रॉस करेगा, इस तरफ खाली है क्रॉस कर लिया, अब यहाँ पे आके थोड़ा रुक के अब इस तरफ का व्हीकल को देख के वो फिर क्रॉस कर पाएगा। ओके, सो इसका भी मेन मोटिव ये भी है कि पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग बोलो या कुछ भी बोलो, उसके लिए सुविधा हो, ठीक है। सो बहुत सारा तुम्हारा एडवांटेजेस है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग मीडियन देते हैं। यहाँ पे देखो बोला है कि टू सेपरेट द ऑपोजिट स्ट्रीम, ठीक है, ऑपोजिट स्ट्रीम ट्रैफिक को सेपरेट करने के लिए, रिजर्व्स द स्पेस फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, अगर कोई फ्यूचर डेवलपमेंट भी करना पड़े तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। इम्प्रूव्स द एस्थेटिक, देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। और बोला है क्या, रिड्यूसेस द हेडलाइट ग्लेयर, जो जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, रिड्यूसेस द हेडलाइट ग्लेयर बाय एकोमोडेटिंग द वेजिटेशन, वहां पे बीच बीच में देखना प्लांट्स वांट्स दे देता है, क्यों, जिससे कि वो हेडलाइट का ग्लेयर को रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो मिनिमम यहाँ पे इसका मिनिमम बोला गया है कि कितना रखना है, मिनिमम विथ 1.5 मीटर रखने के लिए बोला है, ठीक है, मिनिमम इन हाईवेज एंड ऑल। ओके, तो ये है तुम्हारा मीडियन। मीडियन का काम क्या है, ठीक है, जैसे कि ये वाला जो हाईवेज वाईवेज में तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है मीडियन। नेक्स्ट इज कर्ब। कर्ब ये क्या होता है, कर्ब वाई रास्ते के साइड साइड में देखना, ऐसा उठा हुआ रहता है, राइट, ये जो है ऐसे ऊपर उठा हुआ रहता है, नीचे ड्रेन है जो भी है, ऊपर फुटपाथ है, ठीक है, ऐसा वाला। ओके, इसी को बोलते हैं कर्ब। कर्ब हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, कुछ कुछ रास्ते में कर्ब नहीं था, जैसे हम ये वाला में देखो, इसमें कर्ब है, इसमें कर्ब नहीं है, राइट, लेकिन किसी किसी में हम लोग कर्ब दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि जिससे ये सेपरेट हो सके, ठीक है। और जहां जहां पे कर्व नहीं है तो क्या दिया है हम लोग, बॉर्डर लाइन दे दिए है। ओके, हेलो, अच्छा सब है, हेलो, यस मैम। ओके, तो बॉर्डर लाइन दे दिया जिससे कि हमको पता चले कि यहीं पर कैरेज वे खत्म हो रहा है, मतलब गाड़ी को इस तरफ जाने का नहीं है, इसको इसके अंदर ही उसको चलाने का है, राइट। तो बॉर्डर लाइन दे दिया है, ठीक है। और कुछ कुछ जगह पर ऐसा कर्व देता है जिससे कि हम लोग डिमार्केट कर सके कि हम लोग का इतना ही एरिया है जहाँ पे गाड़ी चल सकता है, ठीक है। अब कर्व बहुत सारे अर्बन एरियाज, ठीक है, अर्बन एरियाज मतलब जैसे कोलकाता सिटीज में देखना ऐसा कर्व उठा हुआ रहता है, बहुत सारे सिटीज में कर्व दिया रहता है। उसके 3 टाइप्स, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होता है तुम्हारा, एक होता है कि माउंटेबल, ठीक है, माउंटेबल मतलब उसका हाइट थोड़ा छोटा रहेगा, ज्यादा ऊंचा नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ से तुम इजीली व्हीकल को माउंट कर पाओगे, अगर इस तरफ व्हीकल है तो इसको इजीली, अगर पार्किंग वार्किंग करने का सुविधा है वहां पे, तो जहाँ पे पार्किंग करने के लिए, ऑन स्ट्रीट पार्किंग करने के लिए अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी रहेगा, तो वहां पे ये सब कर्व दिया रहता है, ठीक है। वहां पे बोलेगा कि हाँ पार्किंग कर सकते हो तुम लोग, तो इजीली गाड़ी को उठा पाओगे। तो इसका डिस्टेंस हाइट कितना था, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ कुछ है सेमी बैरियर, मतलब कि ज्यादा, मतलब 15 सेंटीमीटर और थोड़ा ऊंचा कर दिया। ऐसा वाला कहाँ पे होता है, जहाँ पे हाई पेडेस्ट्रियन होता है, ठीक है, मतलब जहाँ पे जनरली पार्किंग इज नॉट अलाउड, उस जगह पर तुम्हारा मतलब रोड साइड पार्किंग इज नॉट अलाउड, उस तरह हम लोग कर्व को थोड़ा और बढ़ा देते हैं जिससे कि गाड़ी उठ नहीं पाए, राइट। और वहां पे हम लोग फुटपाथ जनरली ये सब दे देते हैं। और ये सब है हाईली रेस्ट्रिक्टेड, मतलब यहाँ पे पार्किंग हो ही नहीं सकता, वहां पे पार्किंग अलाउ ही नहीं है, प्रोहिबिटेड है।
वहां पे हम लोग दे देंगे क्या, बैरियर टाइप, इसको बोलते हैं बैरियर टाइप। ठीक है, तो यही है तुम्हारा। इसका हाइट देखो, जहाँ पे माउंटेबल मतलब कैरी माउंट कर सकते हैं हम लोग, गाड़ी को उठा सकते हैं, तो 10 सेंटीमीटर है, फिर 15 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर, मतलब दिस इज टोटली फॉर फुटपाथ ओनली, जहाँ पे हाई एकदम हाई पेडेस्ट्रियन है उसके लिए सिर्फ है ये। ठीक है, और जो हम लोग दिखाए थे जो जहाँ पे कैरेज कर्व नहीं था, वो ऐसे बिनीथ द वो उसके लिए दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट है क्लियर। ये कर्व कहाँ पे देते हैं, क्यों देते हैं, मेनली काम है इसको सेपरेट करना। ठीक है, कैरेज वे को शोल्डर से सेपरेट करना। अब शोल्डर क्या है, आते हैं हम लोग, सी दिस इज द शोल्डर, ये वाला कैरेज वे था, सी दिस वाज योर कैरेज वे, ये है कर्व। अब कर्व को छोड़ के जो भी पोर्शन आ रहा है उसको बोलते हैं शोल्डर। जैसे तुम्हारा कंधा हुआ वैसे ये भी कंधा है। ठीक है, अब इसका मेनली हम लोग शोल्डर क्यों देते हैं, एनी आइडिया व्हाई वी प्रोवाइड शोल्डर, मतलब यहीं से तुम्हारा मतलब कुछ दूसरा स्टार्ट क्यों नहीं कर देते, मतलब यहीं पे खत्म क्यों नहीं कर देते, फिर भी एक्स्ट्रा लैंड क्यों दे रहे हैं यहाँ पे। फ्यूचर एग्जैक्टली, यूजेर फर्स्ट जন্য। ऑफ ऑल है कि हाँ, अगर फ्यूचर एक्सपांशन हुआ तब हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, ये वाला शोल्डर कहाँ पे लगता है, कभी कभी हाई पेडेस्ट्रियन वॉल्यूम जहाँ पे, वहां पे भी यूज कर सकते हैं एज ए फुटपाथ। ठीक है, कुछ कुछ हो सकता है कि इमरजेंसी लेन के हिसाब में भी यूज कर सकते हैं, कभी कुछ खराब हो गया तो इमरजेंसी लेन यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसके लिए भी हो सकता है कभी कभी। और मेन है कि ये जो लैटरल सपोर्ट दे रहा है, मतलब अगर सपोज दिस इज योर पेवमेंट, ओके, ये पेवमेंट है, इस तरफ शोल्डर है, ठीक है, ये एज है, तो यहाँ पे जो लोड आ रहा है, व्हील लोड जो आ रहा है बार बार, राइट, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये तो लेयर्स है, डिफरेंट पेवमेंट लेयर्स है, सो दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपैंड। ये लोड की वजह से इस तरफ एक्सपैंड करने का कोशिश कर सकता है ये लेयर्स। ठीक है, तो उसके लिए भी ये वाला शोल्डर हम एक्स्ट्रा मतलब माटी वाटी डालकर एक्स्ट्रा शोल्डर यहाँ पे दे रहे हैं, जिससे कि इट प्रोवाइड द लैटरल सपोर्ट, जिससे ये एक्सपांसन ना हो पाए, ये पेवमेंट एक्सपांड ना कर पाए। ठीक है, उसके लिए भी ये वाला शोल्डर का हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और एक क्राइटेरिया ये है कि दिस शोल्डर शुड एटलीस्ट बियर द लोड ऑफ अ लोडेड ट्रक, मतलब एक ट्रक आके यहाँ पे खड़ा हो जाए तो वो टूट नहीं जाए, ये डिफेक्ट होना स्टार्ट ना कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट एक लोड मतलब एक ट्रक का लोड वो कैरी कर सके, उतना कैपेसिटी डिजाइन करके हमको ये डिजाइन करना, उतना कैपेसिटी इसका होना चाहिए, उस हिसाब से हमको ये डिजाइन करना है शोल्डर को। ओके, और जो अभी बोला कि फ्यूचर एक्सपांशन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं शोल्डर। ओके, अब देखो शोल्डर का यहाँ पे दिया है बहुत सारा काम क्या क्या है, थोड़ा अलग से कलर का होता है। ठीक है, जिससे हम लोग मतलब डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये रास्ता है वो है। देखो ये वाला एक इमरजेंसी लेन की तरह यूज कर रहा है, फुटपाथ की तरह यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फ्यूचर एक्सपांशन, और ये शोल्डर में कभी कभी जो बोले थे ना हम लोग, कर्व, अगर माउंटेबल कर्व यूज कर रहे हैं तो क्या है, वो इजिली गाड़ी को हम पार्क के लिए ले जा सकते हैं उस तरफ। ठीक है, शोल्डर में ही। सो ये सब है तुम्हारा। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्रीटेड शोल्डर, मतलब वो पूरा बिटुमिन जैसे पेवमेंट डिजाइन किया था वैसे ही एक्स्ट्रा पोर्शन। और ये है अनट्रीटेड, जो कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्दन अर्दन टाइप से बना हुआ है। ठीक है, सो अनट्रीटेड शोल्डर। अब मैम आते हैं, শোল্ডার আর ফুটপাথ সেমই জিনিস? शोल्डर इज यूज्ड एज फुटपाथ। আচ্ছা। ओके, यही है, मतलब वो पोर्शन को शोल्डर बोलते हैं। अब शोल्डर में तुम्हारा एक्स्ट्रा लेन दे सकते हो, इमरजेंसी लेन दे सकते हो, या साइकिल के लिए रास्ता दे सकते हो, या फुटपाथ दे सकते हो, वही है। ठीक है, अब आता है कि गार्ड रेल। गार्ड रेल क्या है पता है, गार्ड रेल क्यों देते हैं, गार्ड रेल मतलब ये जो दिख रहा है देखो, सपोर्ट टाइप का, राइट, ये भी ये कर्व नहीं है, लेकिन उस तरफ फुटपाथ नहीं है, उस तरफ क्या है, उस तरफ खाली है, क्लिफ है, राइट, ऐसे देखो यहाँ पे क्लिफ है, तो क्या हो जाता कि हम लोग को गार्ड रेल देना है, जिससे कि नाइट विजन, अगर रात को, सुबह को तो तुमको दिख रहा है, अच्छा ये ऐसे कर्व जा रहा है, हमको क्लियर विजन दिख रहा है, लेकिन रात को हो सकता है कि विजन ना दे, राइट, और हमको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे अच्छा कर्व है बोल के। ठीक है, तो उसको नाइट विजन देने के लिए ऐसा हम लोग गार्ड रेल देते हैं, जो कि येलो कलर में ऐसे जो रिफ्लेक्टर यूज करके दिया रहता है, जो रात में लाइट के रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्ट बैक करके, मतलब येलो कलर का लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि तुमको पाथ दिखाई पड़े। ठीक है, कि अच्छा वहां पे एक कर्व है।
ठीक है, तो इसको गार्ड रेल, गार्ड कर रहा है, तुमको प्रोटेक्ट करके करके लेकर जा रहा है जहां जहां पे कर्व होता है। तो वहां पे गार्ड रेल्स ये सब जनरली कर्व में देते हैं हम लोग, ठीक है, या हिली एरियाज जहाँ पे होता है कि एक पोर्शन में तुम्हारा क्या है, पूरा क्लिफ है, उसको भी प्रोटेक्शन के हिसाब से हम लोग दे सकते हैं कि ऐसा यही तुम्हारा यहाँ से उस तरफ जाने का नहीं है, क्योंकि उस तरफ जाओगे तो गिर जाओगे, राइट। तो इसी को बोलते हैं गार्ड रेल। अब इन सब को छोड़ के, ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर मेनी अदर रोड मार्जिन्स ऑल्सो, ओके, जैसे कि पार्किंग लेन, ठीक है, ले बैक, बस बेस, ये सब एक्स्ट्रा, ये सब को हम लोग मार्किंग्स में भी आ सकते हैं, जैसे साइंस एंड मार्किंग्स हम लोग बोल रहे हैं, ट्रैफिक साइन एंड मार्किंग, उस सब में भी आ जाता है, ठीक है। फ्रंटरेज रोड मतलब एक पैरेलल रोड जाएगा, हाईवे के साथ साथ एक पैरेलल रोड जाएगा, उसको फ्रंटरेज रोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब, जैसे ये बस बे हो गया, एक्स्ट्रा हम लोग लेन दे रहे हैं, बस बे, एक्स्ट्रा लेन भी नहीं, एक्स्ट्रा पोर्शन दे रहे हैं बस बे के लिए, सिर्फ बस आके खड़ा होगा बस, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे हाईवे है, ये पैरेलल एक जा रहा है, इसको फ्रंटेज रोड बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये रोडवे है, इसके पैरेलल एक रोड जा रहा है, ठीक है। तो ऑल दीज आर तुम्हारा अदर देन द जो कुछ हम लोग पढ़े थे रोड मार्जिन्स में आता है। अब ये वाला इम्पोर्टेंट है, देखो, दिस इज द क्रॉस सेक्शन की एक एम्बैकमेंट है, ठीक है। अब ये क्रॉस रास्ता, तुम क्रॉस सेक्शन में क्या क्या दिख पाओगे, अभी टिल नाउ हम लोग सिर्फ यहाँ तक ही सीमित थे, हम लोग का नजर सिर्फ यहाँ तक था, वी कैन व्यू ओनली दिस वन ओनली, ओके। अब देखो हम लोग अपना आई को थोड़ा बड़ा कर दिया, व्यू को थोड़ा बड़ा चौड़ा कर दिया, तो क्या क्या आता है क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड में, क्या क्या आता है। तो फर्स्ट जो ब्लैक टॉप जहाँ पे गाड़ी सिर्फ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं पेवमेंट और कैरेज वे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इट इज कैरेज वे, कैरी करेगा, ठीक है। अब आया शोल्डर, उसके बगल बगल में शोल्डर, देखो शोल्डर में भी थोड़ा स्लोप दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्यों, पानी तो आके शोल्डर में नहीं जमना चाहिए, शोल्डर से भी तो नीचे जाना चाहिए, राइट, तो वही है, शोल्डर से नीचे जाके यहाँ पे ड्रेन है, ठीक है। अब ये वाला एज को बोलते हैं शोल्डर, शोल्डर। अब टोटल लेंथ शोल्डर प्लस कैरेज वे मिलाकर जो होता है रास्ते का लेंथ, और क्रॉस सेक्शन में जो तुमको विथ, चौड़ाई, सॉरी लेंथ नहीं विथ, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन विथ, ठीक है। फॉर्मेशन विथ इसको बोलते हैं, मतलब कि जहाँ पे हम लोग रास्ता को फॉर्म करते हैं जिस जगह पर, ठीक है। अब आते हैं कि रोड मार्जिन्स, देखो रोड मार्जिन्स के लिए 3 ठो लाइन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन जो है, ये तो ड्रेन है, और उसके पास का फर्स्ट लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस लाइन को बोलता है क्या, रोड बाउंड्री या रोड लाइन बाउंड्री बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको रोड लाइन भी बोल सकते हैं, लैंड लिखा है यहाँ पे, या लैंड भी बोल सकते हो, रोड लाइन और रोड लैंड बाउंड्री, ठीक है। उसके बाद वाला और एक थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, और चौड़ाई हम लोग बढ़ा दिया, ठीक है। अब चौड़ाई बढ़ा के ये एक लाइन होगा यहाँ से लेकर, और एक लाइन यहाँ पे, ठीक है। ये वाले लाइन को बोलता है बिल्डिंग लाइन, ठीक है। अब उससे भी थोड़ा और उस तरफ क्या है, कंट्रोल लाइन। पहले ये बोलो, नाम सब समझ में आया, तो एक है बिल्डिंग लाइन फर्स्ट जो आएगा, फिर आएगा कंट्रोल, सॉरी फर्स्ट आएगा रोड लाइन, फिर आएगा बिल्डिंग लाइन, फिर आएगा कंट्रोल लाइन, क्लियर। अब ये जो रोड लाइन के बीच में जो लैंड है, जो विड्थ है, उसको बोलते हैं रोड लैंड विड्थ, ठीक है। मतलब हमारा फ्यूचर एक्सपांशन यहाँ तक है, पॉसिबल है यहाँ तक, इसको राइट ऑफ वे भी बोल सकते हैं हम लोग, इसको राइट ऑफ वे भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचकर इतना लैंड अपना रख के चलते हैं, रास्ते का तुम्हारा एक्चुअली रास्ता इतना में खत्म हो गया, राइट, लेकिन हम फ्यूचर के बारे में सोच के और एक्स्ट्रा लैंड रख के जा रहे हैं, तो कितना जा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये लैंड को ही बोलते हैं राइट ऑफ वे लैंड और रोड लैंड विड्थ, ठीक है। अब देखो इस लाइन के उस तरफ, ठीक है, क्या है, बिल्डिंग लाइन है। अब ये जो लाइन बीच में है, इसमें एक स्पेस रखना है, मतलब यहाँ पे देयर शुड बी नो कंस्ट्रक्शन, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अगर घर वर कुछ भी है तो ये बिल्डिंग लाइन के उस पार में ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये वाला फांका रहना चाहिए, ठीक है।
ये रोड लैंड है, इतना लैंड हम यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर, और उसको और छोड़ के भी कुछ लैंड ऐसे ही खाली रहेगा। फिर कुछ लाइन के बाद, कुछ लाइन के बाद, जैसे ये बिल्डिंग लाइन हुआ, इस लाइन के बाद ही, इस लाइन के बाद ही तुम कंस्ट्रक्ट कर सकोगे, इस लाइन के बाद ही, ठीक है। ये दोनों लाइन के बाद ही तुम कंस्ट्रक्शन अपना जो भी करना है कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो गैप है, देखो ये जो और एक गैप है, ठीक है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इज अलाउड, ये वाला जो गैप है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इज अलाउड बट विथ परमिशन, मतलब तुम्हारा गवर्नमेंट से परमिशन लेके तुम वहां पे कंस्ट्रक्ट, अपना कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए लेकिन परमिशन चाहिए रहेगा। अब विदाउट परमिशन अगर करना पड़ेगा तो कहाँ से करेंगे, ये जो कंट्रोल लाइन है उस तरफ से, इस तरफ से तुम्हारा जो भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन होगा वो सब रहेगा, ठीक है। ऑल दीज आर परमानेंट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन, या अगर कंस्ट्रक्शन होगा भी तो विथ परमिशन होना चाहिए। क्लियर, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो दिस टोटल लैंड जितना हम लोग रख रहे हैं फॉर फ्यूचर पर्पज ऑल्सो एक्सपांशन को कंसिडर करके रखेंगे, उसको बोलते हैं राइट ऑफ वे और रोड लैंड Yes, ma'am. विद, ठीक है। उसके बगल में जो और एक लाइन है उतना तक हमको कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, कहाँ तक, कंट्रोल बिल्डिंग लाइन तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अब जितना भी कंस्ट्रक्शन होगा आफ्टर बिल्डिंग लाइन, लेकिन आफ्टर बिल्डिंग लाइन भी कुछ एरिया है, ठीक है, वहां पे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ओके। अब तुम अपने से कंस्ट्रक्शन विदाउट परमिशन कहाँ से कर सकते हो, अपना परमानेंट घर बड़ से कहाँ से बना सकते हो, आफ्टर द कंट्रोल लाइन ओनली, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन होगा ये लाइन के उस तरफ, इट विल बी योर परमानेंट कंस्ट्रक्शन, ओके। तो यही है तुम्हारा क्रॉस सेक्शन ऑफ लैंड। अब ये जो हम बोले थे राइट ऑफ वे, ये तो सिर्फ हमको क्या मिल रहा है, एक चौड़ाई मिल रहा है कि एक राइट ऑफ वे का विथ कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, मतलब राइट ऑफ वे का विथ होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है राइट ऑफ वे का विथ, ओके। मतलब कि ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक है तुम्हारा राइट ऑफ वे का विथ, ओके। लेकिन राइट ऑफ वे सिर्फ विथ को लेकर नहीं होता है, राइट ऑफ वे इज द एरिया, मतलब मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। अभी ये वाला क्या है, ओनली द विथ है, अब हमको लेंथ भी चाहिए, ठीक है। तो एरिया कैसा होगा दिखने में, राइट ऑफ वे का ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये वाला देखो, एक सिटी है, ये एक सिटी है, ठीक है, या कोई भी एक जगह है। ये जो काला कलर का दिख रहा है, दिस इज योर, ये पेवमेंट का जो भी है, दिस इज दैट पेवमेंट, ओके। और ये जो येलो कलर का बाउंड्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज योर राइट ऑफ वे, मतलब ये जो बाउंड्री है दिस इज योर रोड लाइन बाउंड्री, मतलब ये वाला है रोड लाइन बाउंड्री 1 एंड दिस इज योर अनदर रोड लाइन बाउंड्री, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, ये प्लान व्यू है, टॉप व्यू है, रास्ता इस तरफ से जा रहा है, ठीक है। तो टोटल एरिया जो है दोनों का मिलाकर जो टोटल एरिया तुमको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द राइट ऑफ वे, ओके। और ये जो विथ था यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी विथ था, वही था तुम्हारा रोड लैंड विथ, या जो हम लोग बोले थे रोड लैंड विथ, ओके, रोड लैंड विथ, जो कि तुम्हारा ये है, विच इज दिस वन, ये वाला विथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज द रोड लैंड विथ, ठीक है। अब ये वाला विथ को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा हम लोग का राइट ऑफ वे, जो कि ये है। क्लियर एवरीवन, राइट ऑफ वे क्लियर है ना, इट इज द Yes, इट ma'am. इज द एरिया, ओके, whereas रोड लैंड इज ओनली द विथ, कि इतना फ्यूचर एक्सपांशन हो सकता है, इतना चौड़ा है। whereas एरिया कितना लेकर हमको चलना है फ्यूचर एक्सपांशन के लिए, दैट इज द राइट ऑफ वे, ओके। देन यही तुम्हारा लास्ट लेक्चर था, ठीक है, आज के लिए स्लाइड था। और नेक्स्ट स्लाइड विल बी, योर नेक्स्ट लेक्चर विल बी साइड डिस्टेंस, ओके। Tomorrow, ma'am. 11:30. yes tomorrow. so any doubt, क्लियर अभी जो पढ़ाए हम, एवरीवन? यस मैम। यस मैम। आई थिंक इजी है, राइट? ये वाला चैप्टर इजी है, नो डाउट, ओके, थैंक यू।
मतलब इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है, और न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे जब करेंगे तो तुम लोग न्यूमेरिकल्स भी इंटरेस्टिंग ही लगेगा तुमको, उतना टफ नहीं है जैसे स्ट्रक्चर वक्चर में। ओके, अच्छा आज अटेंडेंस मैम अटेंडेंस इतना इतना कम क्यों है अटेंडेंस आज? है मैम, ज्यादा बहुत कम है, 26। यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमको अटेंडेंस। ম্যাম প্রবলেম হচ্ছিল বলে 5 মিনিট আগে বেরিয়ে গেছিলাম। यहाँ पे तो बहुत कम अटेंडेंस दिखाई दे रहा है। तुम लोग ম্যাম वहाँ पे আজকে ওই जाके, মারের জন্য তাই জন্য হয়েছে হয়তো। अच्छा तुम लोग यहाँ पे हमको दिखाई दे राका दास सिर्फ, अभिषेक शर्मा, अंकुश पाल, अनमोल, सौरव, मानव, दिशा, हीरक, रोनी, सत्यजीत, अनिमेश, आबिर, सौरभ, सिर्फ इन लोग को दिखाई दे रहा है। बाकी लोग किधर है? ম্যাম আমরাও তো আছি, কই আমাদের নাম দেখাচ্ছে না কেন? সেটা আমি বুঝতে পারছি না তো। হ্যাঁ ম্যাম আমরাও তো আছি, তাহলে সেটাই আপনার সেটাই, নাম ওয়েট রোল নাম্বার ওয়েট। লিখে দিচ্ছি না। मैम अच्छा मैम तुम उन लोग लोग लास्ट में